Good morning, students. My name is Ritu Singh, and I'll be taking lectures for the subject of microeconomics. I have introduced myself before, so here I am again to take lectures on microeconomics. In first lecture, we took the topic of introduction to microeconomics and its comparison with the macroeconomics. And we also studied what is economics as a whole. So, in this next lecture, we will move forward. Okay. So, before moving forward to the next topic, we will also do a little revision also of the subject or of the topics we studied in last class. So, in last lecture, we discussed that what is economics. Economics is a social science concerned with the production, distribution, consumption of goods and services. And it can be generally broken down into macroeconomics and microeconomics. Macroeconomics concentrates on the behavior of whole economy, and microeconomics talks about individual consumers and businesses. Then we studied microeconomics. We discussed about microeconomics, that it is a study of individuals, single households, and an individual firm's behavior in decision making and allocation of resources. It generally applies to markets of goods and services and deals with individual economic issues. Also, microeconomics is the study of decisions made by people and business regarding the allocation of resources and the final price of goods and services. So, then we discussed about the scope and purpose of microeconomics and its significance in business decision making. So, what is the scope of microeconomics? The first point was commodity pricing. In microeconomics, we discuss about the forces of demand and supply. So, microeconomics में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का बात की जाती है. डिमांड एंड सप्लाई इज कंसर्न व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोइकोनॉमिक्स. क्या डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, किसी गुड या सर्विस की, और उस डिमांड के बेसिस पे कितनी सप्लाई होगी, कैसे होगी, ये हम डिसाइड करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में. और इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स बिहेवियर, उसका कंज्यूमिंग बिहेवियर कैसा है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर कंज्यूमिंग. देन इज फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी. We studied that microeconomics helps in determining the factor prices for land, labor, and capital, and entrepreneurship in form of rent and profit respectively. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये भी स्टडी करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है फैक्टर्स का प्रोडक्शन पे. प्रोडक्शन करते समय कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. They are land factor, labor factor, they can be capital factor. How those factors are affecting the working of an organization or a firm is studied under factor pricing theory. The next is theory of economic welfare. So, in theory of economic welfare, we studied that microeconomics focuses on three questions: what to produce, how to produce, and how to give it to the final consumers. Here are the three questions of microeconomics on the basis of resource allocation: what to produce, how to produce, and for whom to produce. आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, एक फर्म के पास या एक इंडिविजुअल के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, वो उससे क्या प्रोड्यूस करेगा, कैसे प्रोड्यूस करेगा और किसके लिए प्रोड्यूस करेगा. और हमारा फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स पे इस बात पे रहता है दैट देयर शुड बी मैक्सिमम आउटपुट फॉर द मिनिमम इनपुट. वी हैव टू इंश्योर मैक्सिमम आउटपुट फॉर मिनिमम इनपुट. Then we went on to the topic of significance of microeconomics in decision making. So, in business decision making, what is the importance of microeconomics? क्यों ज़रूरी है microeconomics? First point was optimum utilization of resources.
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी हैव स्टडीड, हमने अभी एक स्टेटमेंट कहा था दैट मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, इनपुट कम हो या जितना भी हो, वट एवर इनपुट वी हैव, इफ वी हैव इनपुट ऑफ 10 then we should thrive to give the output of 10 also. That means we have to work on maximum efficiency. So that is the optimum utilization of resources. यानी कि हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है अपने रिसोर्सेज को, उसमें से कुछ भी वेस्ट या बाई प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए. द नेक्स्ट इज डिमांड एनालिसिस. माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी फर्म मार्केट में अपना प्रोडक्ट लाने से पहले एक प्रॉपर डिमांड एनालिसिस करती है, ये जानने के लिए कि जो प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आ रही है या जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करना चाह रही है, क्या उसकी सफिशिएंट डिमांड है मार्केट में, क्या उस डिमांड में कुछ सप्लाई गैप है और उस सप्लाई गैप को वो कंपनी अपने प्रोडक्शन से पूरा कर सकती है और प्रॉफिट अर्न कर सकती है. The next is cost analysis. Cost analysis is also done. So to understand that how much these production process or the service giving process is going to cost to company, and if that cost is going to be profitable or not for the company. The next is free market economy. Microeconomics explains the operating of free market where an individual producer has freedom to take economic decisions what to produce, how to produce and for whom to produce. तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, दैट मीन्स एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर तय कर सकता है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करेगा टू एक्सप्लॉइट द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. देन product decision optimization. Here, the microeconomics dealt with different production techniques that help to find out the optimal production decision, which helps the decision makers to determine the factors needed in order to produce a certain product or a range of product. So, in this point, we studied or we read that माइक्रोइकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन मेथड है, जो प्रोडक्शन लाइन है, वो ऑप्टिमाइज्ड हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड पार्ले, इट इज़ प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज बिस्किट्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. So they have optimized their process over time. They make sure that whatever raw material they use, whether it is wheat, whether it is a dough, whether it is a sugar solution or it is a sweetener for making that glucose biscuit, it is used in proper manner without any kind of wastage. Then next is pricing policy. Microeconomics also helps managers in determining the final price for their product. क्या फाइनल प्राइस होना चाहिए उनके प्रोडक्ट का विच इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल बाय द कंज्यूमर. अगर बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा तो कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा, वो उसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेगा. बहुत कम प्राइस होगा तो हो सकता है कंज्यूमर ये सोच के चले कि प्रोडक्ट चीप है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए इसका प्राइस कम है. तो हाउ टू मेंटेन अ गुड प्राइसेस विच encourages consumer to buy the product and also ensures profit for the product, it is decided in pricing policy. Then determination of relative prices of products and factors of production. Microeconomics helps in analyzing market mechanisms, that is determination of demand and supply, which is responsible for the determining prices of commodities in the market. Along with this, it provides an insight on theories relating to price of factor of rent, wage and interest and profit. So this point talks about, ये point इस बात पे ध्यान देता है, इस बात को एनालाइज करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्म्स की हेल्प करता है ये जानने में कि कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट में किसी सर्टेन प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई को अफेक्ट कर रहे हैं और कैसे वो फैक्टर्स उस प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं. वो सारे फैक्टर्स पता करने के बाद, उनका इम्पैक्ट पता करने के बाद, जो ऑर्गेनाइजेशन है या फर्म है या इंडिविजुअल है वो ये डिसाइड करता है कि उसे अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की कैसे प्राइसिंग करनी है और अपने फाइनल प्रोडक्ट की किस तरह से प्राइसिंग करनी है. देन microeconomics is also a basis of managerial economics. Well, since we studied that microeconomics is a study of whole economy, यानी कि पूरी कंट्री की बात करता है, तो
जब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात आती है, यानी कि जब मैनेजर को एक कंपनी के प्रॉफिट से डील करना है, वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़ को मिलने वाली प्रॉपर सैलरी एंड बोनस से डील करना है, तो वहाँ पे मैनेजर की हेल्प माइक्रो इकोनॉमिक्स ही करती है, बिकॉज ही हैज़ टू डील विद एवरीथिंग ऑन अ इंडिविजुअल लेवल. सो microeconomics also helps the managers to form the basis of their managerial economics. Then is next is basis of welfare economics. Microeconomics is also concerned with analyzing economic condition but also with the maximization of social welfare. जब माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के थ्रू एक फर्म डिसाइड करती है या डिटरमाइन करती है कि उसका क्या प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, और वो किस तरह के मार्केट में वर्क करने वाला है, यानी मोनोपोली मार्केट में है या ओलिगोपोली मार्केट में है या फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में है, तो वहाँ पे ये डिसाइड हो जाता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, किस तरीके से एफिशिएंसी मेंटेन होगी. एंड आफ्टर ऑल दोज फैक्टर्स, how we are going to create a welfare environment, well framed environment for the employees and the consumers. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी हेल्प करता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं लोग, वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी प्रॉपर रिसोर्सेज मिलें, प्रॉपर सर्विसेज मिलें काम करते वक्त, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो कंज्यूमर्स के लिए भी पूरा यूजफुल हो. Then formulation of public economic policies. Microeconomics tools are useful for producing policies relating to tax, tariff, debt and subsidies. तो माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हेल्प करती हैं किसी भी गवर्नमेंट की कि उन्हें कितना टैक्स चार्ज करना है, कितनी सब्सिडी देनी है, कितना अमाउंट ऑफ लोन देना है किसी भी सेगमेंट ऑफ मार्केट को. वो ये स्टडी करते हैं कि वहाँ पे कितनी फर्म्स हैं, कितनी इंडिविजुअल फर्म्स हैं, कितनी पार्टनर्ड फर्म्स हैं, वो जो भी सेक्टर है वो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, कितने लोगों को जॉब दे रहा है, जॉब सिक्योरिटी दे रहा है, कितने लोगों को सपोर्ट करता है. उन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के गवर्नमेंट टैक्स, सब्सिडीज एंड टैरिफ्स डिज़ाइन करती है. देन माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन foreign trade also on the base like export and import, and tries to maintain a proper um, rate of foreign exchange between currencies. Then we discussed about microeconomics versus macroeconomics. किस तरीके से माइक्रोइकोनॉमिक्स मैक्रोइकोनॉमिक्स से डिफर करती है. So, इसमें हमने पढ़ा था, और we have studied again and again, microeconomics, that is a study of individual and business decision taken on a individual level or a small level. But macroeconomics looks at the decision of whole countries and whole governments. So, let's focus on microeconomics. And also we studied the differences between key takeaways of micro and macroeconomics. So we have already discussed it. The notes will be provided to you also. So we'll move forward. What is microeconomics? We will focus completely on microeconomics right now. In this lecture, we'll be only talking about microeconomics and what are the topics you are going to study in next units. So when we discuss about microeconomics, we have studied a very basic definition.
That microeconomics is a study of decisions made by people and business regarding the allocation of resources and prices of goods and services, and also takes into account all the taxes, regulations given by the government. तो microeconomics basically study है which is done by people and the business houses to make sure that the allocation of resources is done very properly. जिस फील्ड को, जिस डिपार्टमेंट को जितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो उन्हें प्रॉपरली मिले. Then microeconomics focuses on supply and demand and other forces that determine the price levels in the economy. So microeconomics ये फोकस करता है कि सप्लाई एंड डिमांड क्या है मार्केट की. क्या सप्लाई और डिमांड के बीच में कोई गैप है? अगर वहाँ गैप है तो हाउ दैट गैप कैन बी फिल्ड. शुड अ न्यू कंपनी शुड कम इन द मार्केट. क्या एक नई कंपनी को मार्केट में आना चाहिए उस गैप को फिल करने के लिए, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो ही अपने स्केल ऑफ ऑपरेशंस को इंक्रीज करके उस सप्लाई डिमांड गैप को भर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, currently in as we have seen the times of COVID-19, मार्केट में एकदम से सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट हुई पीपीई किट्स के लिए. देयर इज अ डिमांड फॉर मास्क की डिमांड आई कि नाउ एवरी पर्सन शुड बी कैरिंग मास्क फॉर देयर ओन सेफ्टी एंड अदर सेफ्टी ऑल्सो. सो नाउ when the demand of mask increase, we are the country of 1.3 billion people. 130 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी. तो अब इस केस में क्या हुआ कि डिफरेंट कंपनीज ने देखा कि मार्केट में कितना ज़्यादा सप्लाई एंड डिमांड गैप है. तो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट टेक्सटाइल कंपनीज स्टार्टेड मेकिंग मास्क. Then different companies came into the business of PPE kits. They started making those kits which were used to be exported from China before COVID-19 pandemic. जिस चीज़ के लिए हम लोग पहले चाइना पे डिपेंडेंट थे उसको हमने अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. So what are the so this was the example. I hope you understood. The next is microeconomics involves several key principles including demand, supply and equilibrium. तो हम बार बार बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई गैप की, और उस गैप को जब हम भर देते हैं, उस जब गैप को हम कवर अप कर देते हैं तो वी क्रिएट एन इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, यानी कि कंज्यूमर्स को अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ऐसे प्राइसेस पे जिस पे वो उसे खरीद सकते हैं. ओके. द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन थ्योरी. Production theory talks about and it discusses that how goods and services are created or manufactured. So these are all the theories which you will studying in your next chapters and next units. So you need to get a basic understanding of these. So production theory ये कहती है कि that how goods and services are created or manufactured. यानी कि production theory इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स की production theory माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रोडक्शन थ्योरी ये जानने की कोशिश करती है कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ एंड मिनिमम वेस्टेज के साथ. द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी डिसाइड करने की कोशिश करती है, ये भी जानने की कोशिश करती है कि किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को करते समय, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को लाइट में लाते समय क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, क्या वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फीजिबल है, क्या उतनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें करना ज़रूरी है, ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू पता करते हैं. एंड देन इज द लेबर इकोनॉमिक्स. इट ऑल्सो वर्क्स फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स and tries to understand the pattern of wages, employment and income. So microeconomics एक business house में ये भी help करता है कि किस तरीके से workers को कैसे employ करना है and how those workers should have proper communication with the employers. ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी लेवल्स ऑफ हायरार्की हैं, जितने भी लेवल्स पे लोग काम कर रहे हैं,
दे ऑल शुड बी प्रॉपरली कनेक्टेड. उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑपरेशन इस्टेब्लिश होना चाहिए, तभी एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकेगा. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये भी बात करता है कि एम्प्लॉयर को अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉई से कितनी देर काम कराना है, किस तरीके का काम कराना है, कितनी सैलरी या वेजेस देनी है. एंड ऑल दोज पॉइंट हैव टू बी जस्ट, so that so that a equilibrium can be created. एक प्रॉपर कोऑपरेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन लेवल ये इस्टेब्लिश करता है, इस चीज़ को इंश्योर करता है कि वर्कर्स अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में खुश हैं, दे आर मोटिवेटेड इनफ, they are encouraged enough, and they give 100% to their job and produces a quality product. So the goal of microeconomics here is to analyze the market mechanisms that relatively establishes prices among goods and services and allocate limited resources among alternative uses. So when you move forward, when you study more deeper, then you find out that microeconomics focuses on firms and individual, and on the other hand macroeconomics focuses on completely on economic activity, on the issues of growth, inflation and unemployment. अब अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि न्यूज़पेपर्स में आजकल ये वीकली न्यूज़ है, एंड इट इज़ quite of importance very much, that due to the this pandemic of COVID-19, a lot of people lost their jobs. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया. अब उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे डिक्रीज किया जाए, कैसे उन अनएम्प्लॉयड लोगों को वापस फिर से जॉब दिलाई जाए, किस तरीके से उन्हें फिर से एम्प्लॉय किया जाए, ये सारे मैटर्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं. बट जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है तो उस केस में ये डिसाइड किया जाता है, ये तय किया जाता है कि कैसे उन अनएम्प्लॉयड पीपल को कहाँ कहाँ छोटे छोटे सेक्टर्स में एम्प्लॉय किया जा सके और उन्हें कितनी सैलरी वगैरह दी जाए, सो दैट दे कैन हैव अ गुड और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू लिव विद. Then let's focus on some assumptions and definitions of microeconomics. So in technical assumption ये कहता है that relations are continuous is needed to ensure existence of utility function. So जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, दैट इज़ यूटिलिटी. एंड आगे जाके हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. तो यूटिलिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट किसी पर्सन के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए कितना यूज़फुल है. वो प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है उस इंडिविजुअल के लिए तो इट हैज़ अ हाई यूटिलिटी. अगर वो प्रोडक्ट बहुत कम यूज़ का है किसी इंडिविजुअल के लिए तो दैट प्रोडक्ट हैज़ लो यूटिलिटी. And if there is no use of that product for any individual, then that product has no utility. So how to determine that utility function for any product for its consumer is taken under technical assumption of microeconomics. For example, if we talk about let's say a product called a smartphone. A smartphone is very useful for a person like a student. आज के करंट टाइम्स में आप लोगों ने खुद देखा होगा कि आप लोगों ने क्लासेस अटेंड करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए अपने स्मार्टफोन को ही यूज़ किया. आप लोग परचेजेस करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो भी आप अपना अक्सर फ़ोन ही यूज़ करते हैं. एंड मोस्ट प्रॉब्ली आप में से कई लोग ये वीडियो फ़ोन पे ही देख रहे होंगे. तो आपके लिए आपका स्मार्टफोन बहुत ही यूज़फुल है. इट हैज़ फुल यूटिलिटी फॉर यू बिकॉज इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस फॉर यू. But if this smartphone is given to farmer of some Indian rural village, जहाँ पे उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है इस स्मार्टफोन की, he can do his daily job, he can do his daily communication with some feature phone also, तो वहाँ पे ये यूटिलिटी फंक्शन आ जाता है. गवर्नमेंट ने कई सारे ऐप्स इस तरह के डेवलप कर दिए हैं कि जो हमारे
किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा अभी नेटवर्क नहीं आ रहा है, 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, दे कैन परफॉर्म ऑल देयर ड्यूटीज़, ऑल देयर कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू क्रॉप लोन्स, क्रॉप इंश्योरेंस वाया फीचर फ़ोन ऑल्सो। तो उस केस में एक किसान के लिए कोई यूटिलिटी नहीं रह जाती है स्मार्टफ़ोन की, क्योंकि किसान की इतनी इनकम भी नहीं है अभी हमारे कंट्री में कि वो एक स्मार्टफ़ोन अफ़ोर्ड कर सके। तो वो उसके लिए एक दूसरे ऑल्टरनेटिव को ढूँढने की कोशिश करेगा। But also, our government has done a lot of job to ensure that everyone should be benefited by the digital usage of mode of payment. उसके लिए उसने हर तरह के फ़ोन में, चाहे वो फीचर फ़ोन हो, स्मार्टफ़ोन हो, उसके लिए कुछ ना कुछ फीचर्स या एप्स बनाए ही हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जो हर किसी के लिए इंडिविजुअल लेवल पे यूज़फुल हो सके, तो दैट फैक्टर इज स्टडीड अंडर द टेक्निकल अजम्पशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द नेक्स्ट इज सप्लाई एंड डिमांड मॉडल। तो हम सप्लाई और डिमांड के बारे में बहुत देर से बातें कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन। किसी भी चीज़ की सप्लाई मार्केट में तभी की जाएगी जब उसकी डिमांड होगी, और किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड तब होती है जब वो आपके कंज्यूमर्स के लिए या किसी भी कंज्यूमर्स के लिए यूज़फुल होती है, वो उसके किसी ज़रूरी काम को फुलफ़िल कर रही होती है। तो सो हियर इन So herein, supply and demand model, it is described that how prices vary as a result of balance between product availability at each price, that is supply, and the desires of those with purchasing power at each price demand. तो डिमांड मार्केट में तभी क्रिएट होगी जब हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास परचेजिंग पावर है एंड ही हैज़ अ डिज़ायर टू प्रोक्योर दैट प्रोडक्ट। जब एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर मार्केट है जहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है या जो फाइनल पर्सन है जो कि प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसमें इतनी डिज़ायर है कि वो फाइनल प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, और उसके अलावा उसके पास परचेजिंग पावर भी है, दैट मीन्स दे हैव मनी ऑल्सो टू पे फॉर द प्रोडक्ट। तो तभी उस केस में सप्लाई क्रिएट होती है। अगर किसी प्रोडक्ट की कोई डिमांड नहीं है और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से कंज्यूमर से परचेज़ नहीं करना चाहता है, या फिर वो इतना उसके पास उस प्रोडक्ट को ख़रीदने की परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो वो उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करेगा, और डिमांड अगर नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी। ओके, so next is the consumer demand theory of microeconomics. Consumer demand theory relates preferences for the consumption for both goods and services to the consumption expenditures. Ultimately, this relationship between preferences and consumption expenditure is used to relate preferences to consumer demand curves. The link between personal preferences, consumption, and demand curve is one of the most closely studied relations in microeconomics. It is a way of analyzing how consumers may achieve equilibrium between preferences and expenditures by maximizing utility subject to consumer budget constraints. तो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये इंश्योर करती है कि जो हमारा कंज्यूमर है उसे कैसा प्रोडक्ट चाहिए, उस फाइनल प्रोडक्ट के लिए वो कितना खर्चा करने को तैयार है, और जब वो खर्चा कर देगा तो उसके लिए वो प्रोडक्ट कितना यूज़फुल है, वो उसको कितना यूटिलाइज कर सकता है, एंड वो उसे उस प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से दूसरे नए कंज्यूमर्स को बता सकता है, अवेयर कर सकता है। तो दिस इज़ कंज्यूमर डिमांड थ्योरी। कंज्यूमर डिमांड थ्योरी इस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करती है, इस चीज़ को जानने की कोशिश करती है दैट कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जाए कंज्यूमर के प्रेफरेंस और एक्सपेंडिचर के बीच में। कई बार ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर
प्रेफर करता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, पर वो उसके लिए इतना एक्सपेंडिचर नहीं करना चाह रहा है। तो इस मोटिवेशन के बीच का जो गैप है, एक प्रेफरेंस को किसी प्रोडक्ट के प्रति प्रेफरेंस को या उसके डिज़ायर को एक्सपेंडिचर में बदलने के लिए जो भी चीज़ें या जो भी स्कीम्स कोई कंपनी या कोई फर्म लागू करती है, तो वो कंज्यूमर डिमांड थ्योरी के अंदर आती हैं। Then is the production theory. Production theory is a study of production or economic process of converting inputs into outputs. So production theory इस बात पे फोकस करती है, इस बात पे ध्यान देती है कि आपका जो प्रोडक्ट है, whatever product you are going to make, it is made in a way that it maintains all the quality standards. प्रोडक्शन थ्योरी इस बात पे फोकस करती है कि जो भी गुड प्रोड्यूस किया जा रहा है वो अपनी हर स्टेज के टाइम पे, जब वो चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फाइनल गुड हो, चाहे वो स्टोरिंग स्टेज में हो, चाहे वो शिपिंग स्टेज में हो, वो हर स्टेज में क्वालिटी मेंटेन करके रखे एंड हमेशा वो यूज़फुल रहे। ऐसा ना हो कि वो अपने डिफरेंट लेवल से गुजरते हुए जब फाइनली अपने कंज्यूमर के पास कंजम्पशन के लिए पहुंचे तो उसकी कंडीशन यूज़फुल ना रह जाए हमारे कंज्यूमर के लिए। और ये जितना भी प्रोसेस होगा ये मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए किया जाए। द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो ये भी इसी बात पे फोकस करता है कि किस तरीके से किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को उसके इकोनॉमीज ऑफ स्केल में लाया जा सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम किया जा सके सो दैट प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। द नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन हमें पता ही है, हमने पहले भी पढ़ी है, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच वी लेट गो। अगर किसी भी काम को करने के दो तरीके हैं, उसमें से हम जब एक को चूज करते हैं और एक को नहीं चूज करते हैं, तो वहाँ उस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकर होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री चलाना चाह रहे हैं और दूसरा ऑप्शन ये है कि यू विल मेक इस मार्कर फैक्ट्री। अगर आपने ये डिसाइड किया कि आप मार्कर फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हम पेन फैक्ट्री लगाएंगे, तो मार्कर फैक्ट्री से होने वाले प्रॉफिट को जिसे आप लेट गो कर देते हैं या जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो आता है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कैटेगरी में। So, what is opportunity cost here? That opportunity cost of any activity is the value of next best alternative thing one may have done instead. Opportunity cost depends only on the value of next best alternative. It doesn't matter whether one firm has 5 alternatives or 5,000 alternatives. So opportunity cost can tell when not to do something as well as when to do something. तो जब किसी कंपनी के पास एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं काम करने के लिए या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए आता है, तब उस केस में कंपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला यूज़ करती है और ये डिटरमाइन करने की कोशिश करती है कि कौन सा फैक्टर या कौन सा प्रोसीजर हमारे लिए बेटर रहेगा काम करने के लिए। द नेक्स्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। पहला मॉडल सप्लाई एंड डिमांड मॉडल है, जो कि आप अपनी सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। सप्लाई एंड डिमांड मॉडल में हम डिफरेंट फैक्टर्स की बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं जो भी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई एंड डिमांड को इफेक्ट करते हैं, और ये सप्लाई एंड डिमांड डिफरेंट मार्केट्स में किस तरीके से एक्टिवेट या किस तरीके से वर्क करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स यू हैव स्टडीड बिफोर and I would मतलब you will also study those different type of markets in the next unit। तो कई तरह के मार्केट्स हैं। एक आपका होता है मोनोपोली मार्केट, जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म होती है जो सभी कंज्यूमर्स के लिए सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड किस तरीके से मैनेज होगी, उसके फैक्टर्स अलग होंगे। फिर आपका होता है ओलिगोपोली मार्केट, जहाँ पे आपकी दो या तीन फर्म्स होती हैं जो कि एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। तो उस केस में प्रॉफिट किस तरीके से डिवाइड होगा उन कंपनीज के बीच में, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन होगी, ये सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी में इसकी बात की जाती है। फिर नेक्स्ट होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट
एक ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कई सारी कंपनीज होती हैं, मतलब द नंबर कैन बी 20 ऑल्सो, 30 ऑल्सो. दे ऑल प्रोड्यूस ऑलमोस्ट द सेम प्रोडक्ट विद अ लिटिल डिफरेंस. सो वी कॉल इट अ हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट. तो उस मार्केट में, उस केस में सप्लाई एंड डिमांड कैसे फ़र्क करेगा, किस तरीके से अफेक्ट करेगा कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को, ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल, सप्लाई एंड डिमांड मॉडल में पढ़ते हैं. सो दिस वॉज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड मॉडल. एंड सप्लाई एंड डिमांड से हम ये समझ पा रहे हैं कि that how a supply is created and then how it is made to reach to the final consumer. So for today's lecture, we will keep it up to this model only. We will discuss this model in next lecture also, because now the time constraint we have, and I don't want to end this supply and demand model on this on a very small note. I want to talk about it in detail. So we will discuss it in next lecture. So for this lecture, this was of all. And if you have any further questions, you can ask me, and you can post your questions online also. So this is Ritu Singh. Um, so this is Ritu Singh signing off for this class, and hope to see you again in the next class. Thank you so much, students.